Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? वेल, आपसे मिलने पे खुशी तो होती ही है, इसके लिए ये लंबी मुस्कान है। ओके, आशा करता हूँ कि यू एंड योर फैमिली आप बढ़िया हो। टुडे पार्टीशन वैल्यूज़ को आगे लेकर जाएंगे। पार्टीशन वैल्यूज़ के अगले पार्ट की चर्चा और उसका हम सोल्यूशन करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ प्रैक्टिकल, ये सोल्यूशन बेस्ड है, तो सोल्यूशन मुझे एक्सप्लेन करना है और आपको दिखाना है। बाकी कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम या उसके पहले कर लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन वैल्यूज़। आपने मीन किया, आपने मूड किया, आपने मीडियन किया, ये सारे आपके पास्ट टेंस के पार्टीशन वैल्यूज़ का नॉलेज था। ये चैप्टर के अंदर पार्टीशन वैल्यूज़ का मीनिंग, विच इज़ एक डेटा को, डेटा क्या है मैंने लास्ट टाइम बताया, पॉपुलेशन डेटा होता है, इनकम का जो कौन कितना कमाता है वो डेटा होता है, सेविंग्स कौन कितना करता है, कौन कितना इन्वेस्टमेंट करता है, ये सारा डेटा है। और मैंने लास्ट टाइम भी बताया और आज रिपीट करता हूँ मैं, क्यों ये डेटा आजकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और डेटा की चोरी बहुत बहुत सिग्निफिकेंस आजकल रखती है। बड़े बड़े कंपनीज, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वाले, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स का। अलग अलग वेबसाइट्स के पास में अपने यूजर्स का काफ़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, और जो हैकर्स रहते हैं, ओके, विच आर एक्चुअली क्वाइट गुड प्रोग्रामर्स, ओके, दे नो कि ये डेटा की चोरी कैसे करनी है। तो ये बड़े बड़े कंपनीज स्पेसिफिकली कुछ इतने लोगों को अपॉइंट करती है कि भैया जो हमारे पास डेटा है आई क्लाउड में, फेमस हॉलीवुड बॉलीवुड पर्सनैलिटीज़ के फोटोग्राफ्स, उनके पर्सनल फोटोग्राफ्स रहते हैं, ये लीक हो सकता है। हाँ, तो भैया डेटा को बचाना पड़ता है। 2021, 2020, 2050 आते आते डेटा विल बी अ लॉट प्रेशियस, already is. So to understand this data and analyze this data, to partition this data equally, we have to be learning certain techniques, and quartile, decile and percentile are these techniques. Last time हमने ये सीखा कि decile का मतलब क्या है। You can have a D1 and you can be asked a D9 because it is division of the data into 10 equal parts. The data itself can be ungrouped or grouped. लास्ट टाइम हमने अनग्रुप मतलब इंडिविजुअल डेटा समझने की कोशिश की, फॉर विच वी यूज्ड अ पर्टिकुलर फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू इज so सिमिलर विद द क्वार्टाइल फॉर्मूला. Our today's question is also on ungrouped, but because it has the element of more number of people. What does that mean? Find out D2 and D4 for the following data. Now there is marks and there are number of students, but 10 मार्क 5 बच्चों ने लाया, 20 मार्क 6 बच्चों ने लाया. So the number of observations
ये आपको ऐड करने पड़ते हैं विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इसका क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ता है। द वर्ड क्यूम्युलेटिव मीन्स व्हाट? मीन्स एडिशन। 1 and 2 is 1 plus 2 and 3 is 1 plus 2 plus 3, उसको क्यूम्युलेटिव कहते हैं, ऐड करते जाना। तो सबसे पहली बात तो यू क्रिएट अ टेबल in which as per the ascending order of marks which is already given in the question, but चलो वो हमने लिख लिया यहाँ पर, and corresponding number of students, आपको number of observations आ जाएंगे which is 39, मतलब 39 students के data marks के यहाँ पर हम with the help of decile formula क्या करेंगे? analyze करेंगे। cumulative frequency is the addition, तो पहला 5 plus 6 plus 4 plus 5 plus 10 plus 9, this all depends upon आप कितने तेजी से एडिशन कर सकते हो। नाउ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जो D2 है और D4 विच इज द मार्क्स, वो आपको डेफिनेटली बताएगा। ओके, राइट नाउ आगे जाता हूँ और इसके सोल्यूशन में मैं जो D2 हम ढूंढ रहे थे उसका सब्सटीट्यूशन करता हूँ। कर दिया, बिकॉज इट इज n+1, तो 39 plus 1, so you get 40 upon 10, division and opening of the bracket gives you multiply by 4, that gives you the 8th observation। now please understand, ये individual data नहीं था, ये so to say discrete data था। तो ये 8th observation आपको cumulative frequency में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे गया 8th observation। ओके, 5 के बाद 11 के पहले, 5 के बाद 11 के पहले आता है 8th ऑब्जर्वेशन, 5 के ऊपर ही है, तो इट डिनोट्स कि ये जो 11CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहां पे मेरा वो 8th ऑब्जर्वेशन होगा। तो वो लिखते हैं हम, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF, इट लाइज इन इट, उसके अंदर है 11। और अगर उसका हम मार्क्स देखें उस कैटेगरी में, उस लाइन में, 11 के लाइन में, तो आपको 20 मार्क्स दिखेगा, तो 20 बिकम्स योर D2। दैट इज द रीजन हमको क्यूमुलेटिव ढूंढना पड़ता है, बिकॉज क्यूमुलेटिव रास्ता दिखाता है कि आपका डिसाइल नंबर का वैल्यू क्या होगा। यही टेबल यूज करके D4 हम ढूंढ लेते हैं। तो साइज ऑफ J इज गोइंग टू बी 4, बाकी द ब्रैकेट विल रिमेन द सेम। मल्टीप्लाई बाय 4 इज द 16th ऑब्जर्वेशन। तो आपके क्यूम्युलेटिव का जो टेबल है उसमें 16th कहाँ पे है? कभी एग्जैक्ट रहता है, कभी आसपास रहता है। वेल, वो ना 15 के ऊपर 20 के नीचे, तो 20 के अंदर तो कंफर्म है। तो इट लाइज इन CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, और उसी लाइन में 20 के लाइन में आपको 40 मार्क्स दिखेगा। सो बेसिकली जो D4 है विच इज लाइज इन CF 20 इज 40 मार्क्स। तो जब डेटा यहाँ पे मल्टीपल कैंडिडेट्स की दी जाती है तो आपको CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, बिकॉज दैट इज व्हाट विल शो यू द रास्ता ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिसाइल विच द क्वेश्चन इज आस्किंग। दिस इज इट फॉर टुडे। ओके, लंबा लेक्चर मैं नहीं रख रहा, आपका टाइम मुझको वेस्ट नहीं करना, हमारा काम ये लेक्चर का हो चुका है। इसके बाद हम ग्रुप्ड डेटा का करेंगे, जिसके बाद डिसाइल का जो कैलकुलेशन है खत्म वहाँ पे हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखें। अगर आप पुराने हमारे मित्र हो तो कृपया करके शेयरिंग कंटिन्यू कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखें। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।